हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि हिस्ट्री की होगी। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक हिस्ट्री की होती है जिसमें एंशिएंट एंड मेडुअल पूरा कवर होता है। ओके, सो ये पूरी बुक मैं कंप्लीट करूँगा इस लेक्चर सीरीज़ में। सो दिस इज़ नथिंग बट इज़ द first lecture, and obviously I will take lesson 1, I mean chapter 1 from this book. Okay, this will be the introductory lecture. I will finish fast, but maybe the subsequent lectures will be maybe longer based on the length of the chapter. Okay, so those who are preparing for civil services examinations like IAS or for state uh, services public service examinations, okay, which is PCS exam, so those student can get benefit of this lecture series. Okay, so the first lesson is given in this book is the impact of geography on Indian history or unity in diversity. Okay, so this chapter will start today, and we'll see what are things is given. Okay, this is about myself. So let's start the first chapter from this book. Okay, so the first heading is given in this book is nothing but is the Indian geographical features and their impact on history. Okay, तो हमारा जो इंडिया की जो जोग्राफी है उसकी जोग्राफी की वजह से व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन आवर हिस्ट्री दैट विल सी हियर. ओके, सो it is generally said that history has two eyes, one is chronology and other is geography. ठीक है, तो हिस्ट्री को ना दो आईज में देखा जाता है. एक जो होता है क्रोनोलॉजिकल, जो स्टार्टिंग से चलता आता है, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, व्हाटएवर इट इज, एंड सेकंड वन इज द geography. Okay, in other words, time and space are significant factors in determining the historical process, and obviously the time and space is also determine the historical process. In particular, a country geography largely determine its historical event. Obviously किसी भी country की जो history होती है it depends on geography. Okay, it depends on the determined from the historical events, and the history of India is also influenced by its geography. और obvious सी बात है कि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री इट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई जोग्राफी. जैसे कि हमारा जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे पास है, तो इट डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस गल्फ कंट्रीज. ओके, सो there was lot of migration from those side. This invader came to India, okay, and they invaded India. So that's what the geography also matters. अगर मान लो कि वो पास नहीं होता तो इट वाज जैसे कि जितने भी मुगल्स आए या फिर अलग अलग इन्वेटर हमारे कंट्री में आए थे, वो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे, तो शायद हम लोग इन्वाइड नहीं हुए होते. ओके, द मीनिंग इज दैट. हेंस द स्टडी ऑफ इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स contributes to the better understanding of its history. Okay, the Indian subcontinent is a well-defined geographical unit. It may be divided into three major parts or major region. ठीक है, तो हमारा जो इंडियन geographical part है, जो हमारा इंडिया का जो पूरा land है, which is divided into three major region, which is nothing but is the Himalayan mountain, and the second one is the Gangetic plains and the southern peninsula. ठीक है, तो अगर आप इंडिया की जोग्राफी अगर मैप देखोगे तो आपको हिमालय दिखेगा एक साइड में. ठीक है, उसके बाद फिर हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है. फिर आप नीचे के साइड में जाओगे, साउथ साइड में जाओगे तो साउथर्न पेनिनसुला है. ठीक है, फिर सी वगैरह भी यू कैन सी दैट. ओके, देयर आर 5 countries in the subcontinent: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan. Okay, India is the largest among them, and it comprises
28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, ये हमें पता है, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओवर 100 करोड़. ठीक है, देखिए 2001 का सेंसस के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन था इट वाज 100 करोड़, बट नाउ इट इज़ मोर देन दैट. ओके, अराउंड 1.4 बिलियन वी से दैट. Okay, so this was little bit about the very basic background of Indian geography, or you can say the Indian geography. Okay, now as we have already seen that there is three major regions, that is Himalayan region and Indo-Gangetic plains and southern peninsula. So we are going to start the Himalayan mountain. What is given in the Himalayan mountains, which is, देखिए, the Himalayan mountains are situated on the North India. We know that it is in North India, starting from the Pamir in the extreme northwest of India. तो ये start कहाँ से होता है? Pamir से होता है, which is nothing but is the extreme or the northwest. ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान के साइड का जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं. The mighty Himalayan range extends towards नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड है? हमारा नॉर्थ ईस्ट तक पूरा का पूरा एक्सटेंड है. ठीक है, इट हैज़ अ लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर. तो हमारा जो पूरा जो हिमालयन माउंटेन है उसका जो लेंथ है दैट इज़ 2560 किलोमीटर्स अप्रॉक्स. ओके, विद एन एवरेज ब्रेथ ऑफ 240 to 230 किलोमीटर. और जो उसकी ब्रेथ है it is lie between 240 to 320 kilometers. The highest peak of Himalaya is known as Mount Everest, which is in Nepal. ठीक है, तो जो हमारा हिमालय का हाईएस्ट पीक है which is Mount Everest, everyone know that. इसकी जो हाइट है which is 8,869 meters. Okay. Then it act as natural wall and protect the country against the cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. अब देखिए, जो हिमालय का इतना ज़्यादा हाइट होने की वजह से जो साइबेरिया साइड से जो कोल्ड विंड्स आती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. ओके, रोकता है. और दिस कीप द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेयरली वार्म विदाउट द थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, अब इसके वजह से जो हमारा नॉर्थ इंडिया होता है, नॉर्दर्न इंडिया जो इट्स फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, अगर मान लो कि अगर हिमालय नहीं होता तो शायद जैसे साइबेरिया वाला रीजन है हमारा पूरा बर्फ़ रहता, ठंड वाली जगह रहती, बट ड्यू टू हाइट होने की वजह से वो कोल्ड विंड इधर आ नहीं पाता. तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वो इट फेयरली वार्म. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर. ऑब्वियसली विंटर के टाइम में वो थोड़ा ठंडा रहता है, बट मोस्टली गर्म ही रहता है. ठीक है, जो लोग भी यूपी साइड में या फिर दिल्ली साइड में रहते हैं उनको पता है. ओके, हाउ द क्लाइमेट इज. द हिमालयन रीजन इज मोस्टली इनहॉस्पिटेबल इन विंटर एंड जनरली कवर्ड विद द स्नो. ठीक है, और जो हिमालय का रीजन है वो रहने के लायक नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा इट कवर विद द स्नो. ठीक है, other things which is given related to Himalayan mountains is it was considered for a long time that Himalayas stood as a natural barrier to protect India against invasions. ठीक है, अब ऐसा भी बोलते हैं कि जो हिमालय है वो इसके वजह से it protect from invasion, बट ऐसा है नहीं. Why? But the passes in the northwest mountain such as Khyber, Bolan, Kurram and Gomal provides easy route between the India and Central Asia. ठीक है, देखिए इसका इतना हाइट होने की वजह से, इसका डिफ़िकल्ट टेरेन होने की वजह से इट obviously protect the invasion from the Central Asia. बट जैसे पाकिस्तान साइड में हमारा ये अभी पाकिस्तान डिवाइड हुआ, बट इंडिपेंडेंस से पहले वो डिवाइड नहीं था. तो दीज वर द पासेज, खाइबर, बोलम, कुर्रम एंड गोलम, दीज वर एक्चुअली द पासेज विच प्रोवाइड ईजी रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सो जितने भी इन्वेडर इंडिया में आए थे दे वर एक्चुअली फॉलो दीज पासेज.
These passes are situated in the Hindu Kush, Suleiman and Kirtar ranges. Okay, uh, these all in obviously Himalaya mountain. From prehistoric times, there was a continuous flow of traffic through these passes. जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ कि इस passes के through there was a continuous फ्लो ऑफ ट्रैफिक मतलब ठीक है उधर से लोग इधर आते जाते रहते थे. Many people came to India through these passes as invited and immigrants. ठीक है, तो इसमें सारे इन्वाइटर ही नहीं थे, देर वर मेनी इमिग्रेंट्स एज वेल. वो आके फिर यहाँ पे बस गए और यहीं के हो गए. ओके, बट देर वर मेनी हु केम हियर, दे इन्वाइटेड, दे लूटेड एंड दे वेंट बैक. ओके, the Indo-Aryan, the Indo-Greek, Parthian, Sakas, Kusana, Huns and Turks enters India through these passes. ये सारे लोग जो हैं इन ये जो भी passes थे, खैबर, गोलम, खुर्रम, गोलम, ओके, बोलम, तो इसके थ्रू ये लोग आए यहाँ पे. द स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म अनदर इम्पॉर्टेंट रूल. अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडम केम टू इंडिया थ्रू दिस पार्ट. ठीक है, तो अलेक्जेंडर था वो ऑफ मैकेडम. ठीक है, ये भी इंडिया में आया था इसी रूट के थ्रू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इन्वाइडिंग आर्मीज, मिशनरीज एंड मर्चेंट्स केम टू इंडिया यूजिंग दीज रूट. ठीक है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वर्टर ही आते थे, बट मिशनरीज जिनको अपना क्रिश्चियनिटी फैलाना या फिर जो भी वो रिलीजन फॉलो करते थे उसको फैलाना है इंडिया में या फिर उसके आसपास के एरिया में, तो वो लोग भी इधर आए. मर्चेंट्स मतलब जो उनको बिजनेस करना था वो भी यहाँ पे आए. ठीक है, केम टू इंडिया यूजिंग दीज रूट. ठीक है, देयरफॉर दीज पासेस इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन हैड फैसिलिटेटेड ट्रेड एज वेल एज कल्चर कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया. ठीक है, वो मिशनरीज के लिए आए, मर्चेंट के लिए आए, आर्मीज इन्वाइट कर लिया, तो ये सब लोग आए. बट ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ लड़ाई हुआ, बट देर वर ऑल्सो ट्रेड बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. देर वर cultural contacts between them. These things also happen with these passes. Okay, based on the people came here, okay, the kind of culture develop here. Okay, next thing related to Himalayan mountain is in the north of Kashmir is Karakoram range, the second highest peak इन द वर्ल्ड. ठीक है, ईस्ट साइड में आप जाते हो तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, बट अगर आप कश्मीर साइड वेस्ट साइड में जाते हो तो काराकोरम इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक. नो, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज सेकंड. जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, वो उस रेंज में हमारा माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ये काराकोरम रेंज में है. ओके, और दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज एंड इट्स पासेज आर हाई एंड स्नो कवर्ड विद विंटर. ठीक है, इसका भी जो पासेज हैं इट्स वेरी हाई एंड हमेशा जो है ये देवर कवर नॉट हमेशा बट स्पेशली इन विंटर दे कवर विद द स्नो. आप लोग इस चीज़ को कभी ना कभी दोज आर प्रिपेयरिंग, जब आप 9th-10th में रहे हो, सोशल साइंस जब आप पढ़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं भी ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, बट सिंस इट इज़ गिवन इन द बुक सो आई हैव टू टेल टू यू. ओके, नेक्स्ट द काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट इज़ concentrated to Central Asia, but there was little communication through this route. ठीक है, अब जो हमारा काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट ये भी कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से, बट देयर वाज लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट. ठीक है, ये भी एक रूट है, बट इसके थ्रू कम्युनिकेशन आई मीन आना जाना कम होता है. द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन. ठीक है, अब जो हमारा कश्मीर वैली है इट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय द
हाई माउंटेन। अब देखिए ये भी, इसकी भी हाइट वगैरह ज़्यादा होगा, और जो टेरेन होगा इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट उसको आना जाना, तो दैट्स वाई द कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट इज़ डिफ़िकल्ट। आई मीन आई विल नॉट से डिफ़िकल्ट, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई द कम्युनिकेशन इज़ little. However, it could be reached through several passes. The Kashmir Valley remains unique for its tradition and culture. Nepal is also a small valley under the foot of Himalayas and is accessible from Gangetic Plain through a number of passes. अब देखिए आप जो नेपाल है वो भी हिमालय में ही है, हिमालय का जो रेंज है उसी में ही है। अब इसको जाने के कई रास्ते हैं, ठीक है। ये आप उत्तराखंड साइड से भी जा सकते हो, और इवन आप यूपी साइड से भी जा सकते हो, बिहार साइड से भी जा सकते हो। सो देर इज़ लॉट ऑफ passes to go to the Nepal via Indo-Gangetic plains. Okay. In the east, Himalaya extended to Assam, up to Assam, ठीक है। स्टार्टिंग की स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया था कि इट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड टू इट्स go up to Assam. Okay, so it extended up to Assam. The important mountain in this part is Patkoi, Nagai and Lusai range. ठीक है, तो असम में जो इसके जो important mountains है, which is nothing but is the Patkoi, Nagai and Lusai ranges. ठीक है, अब देखिए ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये सारे रेंजेस कहाँ पे है। ठीक है, तो इट इज़ इन असम। ठीक है, आप दे देगा ऑप्शन में मेघालय और नागालैंड वगैरह, असम, बट इट इज़ इन असम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो इट्स इजी, बट इफ़ यू विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज़ लाइक डिफिकल्ट टू आंसर. If you know, then only you can answer. If you don't know, it is like you can't do anything. Okay, so that's why we have to remember these things. And one more thing I want to tell about this book. Why I'm doing this book? देखिए, ये बुक पतली सी छोटी सी बुक है, बट इसमें जो एक एक लाइन दिया हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा सीधा जो इसमें लाइन दिए हुए हैं उसी से यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, आप वैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री की या मैनुअल की बुक अगर उठाओगे, नॉर्मल बुक्स, तो मोटी मोटी सी बुक्स होती हैं, बट दिस बुक इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से, और जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा इसमें दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इसी बुक को ही पढ़ते हो एक या दो बार या तीन बार, आई डोंट थिंक इज अदर बुक इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, और देखिए ये जो मैं लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट विच इज़ गिवन इन द बुक. जो बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें डालने वाला हूँ. तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को भी देखते हो तो आई डोंट थिंक इसको देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है. बट आई विल सजेस्ट यू वॉच दिस वीडियोज़ एंड एटलीस्ट वंस यू रीड द बुक. ओके, नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट आई विल सजेस्ट यू रीड दिस बुक at least once. Okay, next, these hills are covered with thick forest due to heavy rains and mostly remains inhospitable. ठीक है, ये जो हमारे इसकी बात कर रहे हैं ना, पटकोई नागोइलू से, ये जो फॉरेस्ट है ये कवर्ड विद द हैवी रेन्स, और इसमें फिर से वही इसमें रहना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. The mountain of northeast India is difficult to cross and many parts of this region had remained a relative isolation. ठीक है, मतलब कहने मतलब वही है कि इसके जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी माउंटेन है, इट इज़ आइसोलेटेड है. यहाँ पे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसकी हाइट ज़्यादा है, एंड आई मीन यू विल नॉट फाइंड पीपल इन दिस रेंज. ओके, इन दिस माउंटेन्स. सो ऑब्वियसली, तो अगर पब्लिक नहीं है तो आप कैसे रहोगे. सो दिस इज़ द थिंग. ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड रीजन था, दैट इज़ इंडो गैंजेटिक प्लेन. ठीक है, सो विल सी व्हाट इज़ गिवन इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, सो इंडो गैंजेटिक प्लेन इज़ irrigated by three important rivers,
अब देखिए इंडो गैंजेटिक प्लेन मतलब क्या है कि हमारा गंगा नदी एक उत्तराखंड से निकलती है, एंड इट फ्रॉम उत्तराखंड टू यूपी, और फिर वो बिहार होते हुए इट जो वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। तो अब ये उसका जो उससे जितने भी प्लेन हैं, ठीक है, उसके सराउंडिंग जितने भी प्लेन्स आते हैं उसको इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी फर्टाइल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एलुविलाइल सॉइल होती है, ठीक है। इसमें वीट, राइस, मतलब सारी चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है। इट्स लाइक इट फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, ओके। So Indo-Gangetic plain is irrigated by three important rivers, that is Ganga, Indus and Brahmaputra. This vast plain is most fertile, पहले ही बता दिया हूँ मैं आपको, and productive because of alluvial soil, ठीक है। इसको alluvial soil होता है वो which is very very fertile, brought by the stream of rivers and its tributary, ठीक है। वो कहाँ से आता है? जो हमारी rivers हैं उसके वो उसकी स्ट्रीम जो है रिवर की वो लेके आती हैं, ठीक है। आप बचपन में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत, बट स्टिल आई हैव टू टेल बिकॉज दिस इज गिवन इन द बुक। द इंडस रिवर राइज बियॉन्ड द हिमालयाज एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर द झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड बीज, ठीक है। अब देखिए जो इंडस रिवर है बियॉन्ड द हिमालय, इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी, जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड बीज, ठीक है। द पंजाब प्लेन आर बेनिफिटेड बाई द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारा पंजाब है उसके जो प्लेन्स हैं वो किससे बेनिफिटेड है? ये पांचों रिवर से, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर, ठीक है। अब ये जो हमारा पंजाब है, अभी अब देखिए पंजाब का एक काफ़ी पार्ट पाकिस्तान में भी चला गया है, तो इट्स टॉकिंग, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द पंजाब विच इज़ इन इंडिया एज वेल एज द पंजाब विच इज़ इन पाकिस्तान, दोनों को मिला के, ठीक है। तो जो हमारा ये सारी जो रिवर है, पाँचों रिवर हैं, ये इस पंजाब में फ्लो करती थी, और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको फ्लरिश करती थी, ठीक है। स्टिल अभी भी करती हैं, ऐसा नहीं कि तब करती थी। तो इस पांचों रिवर की वजह से जो पंजाब का नाम जो है पंजाब पड़ा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर वैली ऑफ इंडस, ठीक है। तो हमारा जो सिंध है विच इज़ इन पाकिस्तान नाउ, इट इज़ ऑन लोअर वैली ऑफ इंडस। द इंडस प्लेन इज़ नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल, ठीक है। अब इंडस जो सिंध का भी जो ऑब्वियसली जो इंडस का जो प्लेन है इट इज़ ऑल्सो वेरी फर्टाइल। द थार डिजर्ट एंड अरावली हिल आर सिचुएटेड इन बिटवीन द इंडस एंड गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। अब देखिए जो थार डिजर्ट है और जो अरावली हिल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड गैंजेटिक प्लेन। माउंट आबू इज़ द हाइएस्ट पॉइंट विच इज़ 5650 फीट विच इज़ इन अरावली हिल, ठीक है। तो ये माउंट आबू हमारा राजस्थान में पड़ता है, which is in Arauli Hills, and it is also hill station. You can go and see this Mount Abu, and its highest peak is 5650 feet. The Ganga river rises in Himalayas, flows south and then towards east, ठीक है, सबको पता है, जो लोग भी उत्तराखंड गए हैं वो देखे हुए हैं। द रिवर यमुना फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा एंड देन ज्वाइन इट, ठीक है। तो यमुना जो होती गंगा, यमुना रिवर है वो गंगा के पैरेलल फ्लो करती है और ये जाके गंगा में ही मिल जाती है। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, ठीक है। अब इसकी इन दोनों रिवर के बीच में जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। द मीनिंग बिटवीन लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आर द गोमती, सरयू, घाघरा एंड गंडक, ठीक है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर गोमती, सरयू, घाघरा एंड गंडक, ठीक है। जो लोग भी यूपी के हैं उन्हें पता होगा। In the east of India, the Ganga
द गंगा प्लेन इमर्जेस इनटू द प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। द रिवर ब्रह्मपुत्र rises beyond the Himalaya, flow across the Tibet and then continues through plain of नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है, ये जो है इट राइजेस फ्रॉम बियॉन्ड द हिमालय, ठीक है, एंड इट फ्लो अक्रॉस द तिब्बत, तिब्बत के थ्रू फ्लो करता है एंड देन कंटिन्यूज थ्रू प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये ये आसाम वगैरह में भी फ्लो होता है, उसके बाद फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। In the plain, it is a vast but flow-moving river forming several islands. The Indo-Gangetic Plain has contributed to the rise of urban centers, particularly on the river bank or at confluence of the river, ठीक है। मतलब ये जो हमारी गंगा प्लेन है जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, तो you will find lot of cities which is urban cities which is on the bank of this river, like for example Kanpur, Uttarakhand, I mean not Uttarakhand, Rishikesh, you can say that, Haridwar, you can say that, Varanasi, you can say that, okay, Patna. So there is a lot of many cities you will find on the bank of this river Ganga, okay. द हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली, ठीक है। तो हमारा इंडस वैली है उसमें हड़प्पन कल्चर फ्लरिश हुआ था, वी ऑलरेडी नो दैट। द वैदिक कल्चर प्रपोज्ड इन द वेस्टर्न गंजेटिक प्लेन, ओके। तो जो हमारा वैदिक कल्चर है वो भी प्रॉस्पर्ड है इन द वेस्टर्न गंजेटिक प्लेन में, ये हम लोगों को पता है पहले से, ठीक है। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑन द गंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। ऑलरेडी मैं इन सब और आदि के नाम मेंशन कर दिए जो हमारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, लाइक बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड पटना और पाटलिपुत्र। ये पटना का एंशिएंट नेम है पाटलिपुत्र, बट इट इज़ पटना आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द गंजेटिक प्लेन्स। Okay, the city of Patliputra was situated on the confluence of Soon river with the Ganga, okay. In the ancient period, Patliputra had remained the capital of Mauryas, Sungas, Gupta and other kingdom. अब देखिए जो पटना है, प्रेजेंट टाइम पटना और पुराना नाम इसका एंशिएंट नेम पाटलिपुत्र, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, क्योंकि एंशिएंट टाइम में इट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यास तो थे, सुंगास, गुप्ता एंड अदर किंगडम, इनके जो भी सक्सेसर रहे होंगे उनका काफ़ी समय तक दिस वाज द कैपिटल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंजेटिक प्लेन इज़ दिल्ली, ठीक है। अब वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो इस गंजेटिक प्लेन में दिल्ली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी। मोस्ट ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच एज कुरुक्षेत्र, तराइन एंड पानीपत वर फॉट नियर द दिल्ली, ठीक है। अब ये दिल्ली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पास में कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुआ है, विल सी कमिंग लेक्चर्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हियर, ओके। सो इन कुरुक्षेत्र these battle were fought, okay, like तराइन एंड पानीपत की जो लड़ाई है सारी की सारी ये दिल्ली के नियर ही हुई हैं, okay. So that was also, Delhi is very very important for the ancient time point of view, okay. Ancients you can say are medieval, you can say, especially medieval, you can say that. Also, this plain had always been a source of temptation and attraction for foreign invader due to fertility and productivity of wealth, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा ये गंजेटिक प्लेन था, इट वाज वेरी फर्टाइल, और यहाँ पे जो भी राजा रजवाड़े रहते थे दे वर वेरी रिच, ठीक है। और ये जो फॉरेन इन्वेटर होते थे उन्हें पता था कि यहाँ पे अगर हम इन्वेट करते हैं विल गेट लॉट ऑफ वेल्थ, ओके। सो दैट्स वाई दे वर फोकसिंग ऑन दिस रीजन, okay. We'll see in coming lectures whoever came here,
important powers fought for possession of these plains and valleys, especially in the Ganga Yamuna Doab, proved to be the most coveted and contested area. Okay, the rivers in this region serve as the arteries and commerce and communications. Okay. In ancient time, it was difficult to make road, and so men and material were moved by boat. The importance of river for communication continued till the date of ईस्ट इंडिया कंपनी. देखिए, मतलब पहले उस टाइम पे क्या था कि ब्रिजेस नहीं थे, ठीक है. तो अब मान लेते हैं कि उन्हें अगर ट्रेड कर रहे हैं या फिर जाना है तो वो कैसे जाएंगे. दे वर एक्चुअली यूजिंग द बोट, ठीक है. बाय अ बोट दे वर क्रॉसिंग द रिवर. सो ओके, और इस तरीके से जो भी उनका कम्युनिकेशन होता था वो कंटिन्यू रहता था. Okay, so this was the very first lecture from this book. I hope you like that. Next class I will complete this first lesson, and subsequently we'll see the other chapters as well. Thank you.